morning students, welcome to all of you in my class. Today I will teach to the students of class 11 English books. Lesson 1, My Struggle for an Education, written by Booker T. Washington. So children, let's start. We will read textbook. My Struggle for an Education. Struggle में संघर्ष, education में शिक्षा, अर्थात शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष. Written by Booker T. Washington. Booker T. Washington इसके लेखक हैं and he was born in 1856 and died in 1915. So लेसन स्टार्ट करने से पहले चलिए कुछ बातें हम लोग राइटर के विषय में जान लेते हैं. About the author अर्थात लेखक के विषय में. Booker T. Washington, a famous educationist of the United States of America, was born in a poor Negro family in 1856. बुकर टी वॉशिंगटन, जो कि एक प्रसिद्ध शिक्षाविद एजुकेशनिस्ट थे, उनका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में एक गरीब निग्रो परिवार में सन 1856 ईस्वी में हुआ था. His early life was full of difficulties and hardships. उनका प्रारंभिक जीवन मुसीबतों और कठिनाइयों से भरा हुआ था. When he was 9 years old, he began working in a salt furnace and later in a coal mine. जब वह मात्र 9 वर्ष के थे तो वह नमक की भट्टी में कार्य कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने कोयले की खदान में काम करना शुरू कर दिया. Here he heard about Hamilton Normal and Agricultural Institute. यहाँ इस कोयले की खदान में उन्होंने हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल नाम के इंस्टीट्यूट, एक संस्था के बारे में सुना जो कि ब्लैक पीपल्स और श्वेत लोगों के लिए शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था उस समय. As he was a man of iron will, he struggled hard to be educated. क्योंकि वह एक दृढ़ इच्छा संकल्प वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष किया. Later on, he became famous as a social reformer, educator, and a great leader of Negroes. और बाद में वह एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, समाज सुधारक और निग्रो लोगों के महान नेता के रूप में उभर कर सामने आया. He died in 1915. उनका देहांत सन 1915 में हुआ था. He wrote so many books. उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी. But his most famous and valuable autobiographies are Up from Slavery, My Larger Life. लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध और अमूल्य आत्मकथाएं थीं Up from Slavery और My Larger Life. These were published in 1901 and 1911. यह सन 1901 और 1911 में प्रकाशित हुई थी. Let's read something about the lesson. चलिए पाठ के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं बच्चों. Booker T. Washington as a boy worked in a coal mine in Malden. Booker T. Washington जब बालक थे तो वह मार्डन की एक कोयले की खदान में कार्य करते थे. He overheard 2 miners talking about the great school for colored people. उन्होंने वहाँ पर 2 मजदूरों को अश्वेत लोगों के लिए, कलर्ड पीपल के लिए एक प्रसिद्ध स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना. The school seemed to him to be the greatest place on earth and more attractive than even heaven. और यह स्कूल उन्हें स्वर्ग से भी ज्यादा आकर्षक प्रतीत हुआ. He faced a lot of difficulties and ultimately succeeded in getting education in the institute. उन्हें बहुत सारी मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा और अंत में वह इस इंस्टीट्यूट में, इस संस्था में प्रवेश पाने में सफल रहे. बच्चों, this lesson inspires us that we should not be deterred by any or difficulties and hurdles that may come in our way of realizing ambition. चलिए बच्चों, अब लेसन स्टार्ट करते हैं. One day, while at work in the coal mine, I happened to overhear 2 miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. One day, एक दिन, while at work in the coal mine, कोयले की खदान में कार्य करते समय, I happened to overhear, मैंने
संयोगवश सुना टू मानस 2 मजदूरों को टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, बात करते हुए किसी एक महान स्कूल के बारे में। ठीक, फॉर कलर्ड पीपल, अश्वेत लोगों के लिए, समवेयर माने कहीं पर, इन वर्जीनिया अर्थात वर्जीनिया। अर्थात एक दिन कोयले की खदान में कार्य करते समय मैंने 2 मजदूरों को बात करते हुए सुना जो अश्वेत लोगों के लिए किसी स्कूल के बारे में बातें कर रहे थे और वह स्कूल वर्जीनिया में कहीं पर स्थित था। This was the first time that I had ever heard anything about any kind of a school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. This was the first time. यह पहली बार था। I had ever heard anything about any kind of a school. कि मैंने किसी ऐसे स्कूल के बारे में सुना जो कि हमारे कस्बे में स्थित स्कूल से कहीं ज़्यादा आकर्षक था। As they went on describing the school, it seemed to me that it must be the greatest place on the earth. वो जिस प्रकार से स्कूल के बारे में बातें कर रहे थे उससे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम स्थान होगा। Not even heaven presented more attractions for me at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute. उस समय यह स्थान हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, जो कि अश्वेत लोगों के लिए एक फेमस स्कूल था, संस्था थी, मुझे स्वर्ग से भी ज़्यादा आकर्षित प्रतीत हुई, जिसके विषय में ये लोग बातें कर रहे थे। I resolved at once to go to that school, although I had no idea where it was or how many miles away or how I was going to reach it. मैंने तुरंत उस स्कूल जाने का निश्चय किया। यद्यपि आई हैड नो आइडिया, मुझे जरा सा भी पता नहीं था कि यह स्कूल यहाँ से कितनी मील दूर है और या फिर मैं वहाँ पर कैसे पहुँचूँगा। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन। मैं रात दिन लगातार उसी एम्बिशन अर्थात अपनी महत्वाकांक्षा की आग में जल रहा था और यह महत्वाकांक्षा थी हैम्पटन जाने की, अर्थात मैं हैम्पटन जाके शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। दिस थॉट वॉज विद मी डे एंड नाइट, और यह विचार रात दिन मेरे साथ बना रहा कि किस प्रकार मैं उस संस्था में पहुंच जाऊं और एडमिशन प्राप्त करके शिक्षा ग्रहण करूं। इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमिन्ड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर। सन 1872 के पतझड़ के दिनों में मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं वहां जाने का प्रयास करूंगा। My mother was troubled with a great fear that I was starting out in a wild goose chase. तो troubled means परेशान होना, great fear means भयंकर चिंता, wild goose chase means निष्फल कार्य या निरर्थक कार्य जिसका कोई भी परिणाम न निकले। अर्थात my mother was troubled with a great fear, मेरी माँ एक भयंकर चिंता से परेशान थी। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं ऐसे कार्य के पीछे पड़ा हुआ हूँ जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। At any rate, I got only a half-hearted consent from her that I might start. At any rate, फिर भी किसी भी कीमत पर मैंने उनसे आधे हृदय से स्वीकृति प्राप्त कर ली वहाँ जाने की। I had very little money with which to buy clothes and pay my traveling expenses. I had very little money. मेरे पास बहुत थोड़े से पैसे थे जिससे मैं अपने कपड़े और यात्रा के खर्चा निकाल सकता था। My brother John helped me all that he could, but of course that was not a great deal. मेरे भाई जॉन ने यथासंभव सहायता की, बट लेकिन ऑफ कोर्स में निसंदेह यह बहुत अधिक नहीं था, अर्थात कम था मेरे लिए। Finally the great day came and I started for Hampton. और अंत में वह महान दिन आ गया जब मैंने हैम्पटन के लिए प्रस्थान किया। I had only a small cheap sachet and that contained the few articles of clothing I could get. I had only a small sachet, cheap sachet अर्थात सस्ता थैला, कंटेंट माने जिसमें आ सकता था, आर्टिकल्स माने जरूरी वस्तुएं, क्लॉथिंग मीन्स कपड़े, अर्थात मेरे पास एक सस्ता थैला था जिसमें मैं अपने कुछ जरूरी सामान और कपड़े रख सकता था।
My mother at that time was rather weak and broken in health. Broken in health माने स्वास्थ्य खराब होना। मेरी माँ उस समय वीक थी, कमजोर थी और उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, बहुत कमजोर स्वास्थ्य था उस समय। I hardly expected to see her again and thus our parting was all the more sad. I hardly expected, मैं बड़ी मुश्किल से यह आशा कर सकता था, अर्थात मैं उन्हें दोबारा देखने की आशा बहुत कम थी और इस प्रकार से हमारी विदाई और भी अधिक करुणामयी हो गई। She however was very brave through it all. किंतु मेरी माँ ने साहस का परिचय दिया और मुझे उस समय अच्छे से विदा किया। The distance from Malden to Hampton is about 500 miles. अर्थात हैम्पटन से माल्डन की दूरी लगभग 500 मील थी। By walking, begging rides both in wagons and in the cars, in some way, after a number of days, I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton. By walking, अर्थात पैदल चलकर, begging rides both in wagons and in the cars, कार और गाड़ियों में लिफ्ट मांगकर, इन सम किसी प्रकार से, आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, बहुत दिनों के बाद, आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड, मैं रिचमंड शहर पहुंचा जो कि वर्जीनिया में था और यह वर्जीनिया हैम्पटन से 82 मील दूर था। When I reached there, tired, hungry and dirty, and it was late in the night. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं टायर्ड था, अर्थात थका हुआ था, हंगरी था अर्थात भूखा था, एंड डर्टी अर्थात मेरे कपड़े भी गंदे थे, मैं बहुत गंदा दिख रहा था उस समय और यह अर्धरात्रि का समय था। I had never been a large city and this rather added to my misery. Misery means कष्ट। मैं कभी भी किसी बड़े शहर में नहीं रहा था और इससे मेरी समस्या और भी बढ़ गई, मेरा कष्ट और भी बढ़ गया। When I reached Richmond, I was completely out of money. I had not a single acquaintance in the city, in the place, and being unused to city ways, I did not know where to go. अच्छा, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। आउट ऑफ मनी मीन्स पैसे ना होना, पैसे खत्म हो जाना। एक्वेंटेंस मीन्स परिचित व्यक्ति। अनयूज माने अनयूज टू सिटी वेज माने शहर के रीति रिवाजों से अनजान होना। ठीक, जब मैं रिचमंड सिटी पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मेरे पास जरा सा भी पैसे नहीं बचे थे और उस शहर में, उस स्थान पर मेरा कोई परिचित व्यक्ति भी नहीं था और बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, शहर के रीति रिवाज व तौर तरीकों से अनजान होने के कारण आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मैं नहीं जानता था कि अब मैं कहाँ जाऊँ। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग बट दे ऑल वांटेड मनी and that was what I didn't have. I asked at several places for lodging. Lodging माने ठहरना। मैंने कई स्थानों पर ठहरने के लिए विनती की, लेकिन वह सभी लोग पैसे चाहते थे और यह वह चीज़ थी जो उस समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी। Knowing nothing else better to do, I walked the streets. कोई और बेहतर उपाय न होने के कारण मैं रात भर गलियों में टहलता रहा। I must have walked the streets till after midnight. मैं अवश्य ही अर्धरात्रि तक गलियों में टहलता रहा। At last I became so exhausted that I could walk no longer. और अंत में मैं इतना exhausted हो गया, इतना थक गया कि और अधिक नहीं टहल सका। I was tired. मैं थक गया था। I was hungry. मैं भूखा भी था। I was everything but discouraged. डिस्करेज्ड मीन्स हतोत्साहित, अर्थात मैं बहुत थक चुका था, मैं बहुत भूखा था, मैं सब कुछ था लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं था, अर्थात इतनी मुसीबतों के बाद भी मैं हारा नहीं था, मैंने हार नहीं मानी। Just about the time when I reached the extreme physical exhaustion, I came upon a portion of a street where the broad sidewalk was considerably elevated. तब जब मैं एकदम पूरी तरीके से थक गया, शारीरिक रूप से पूरा थक गया, एग्जॉस्शन, आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ स्ट्रीट, मैं गली के उस भाग पर आया जहाँ पर एक चौड़ी फुटपाथ थी और वह ऊंचा हुआ था और कोई व्यक्ति मुझे वहाँ से नहीं देख सकता था।
आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैंने कुछ समय तक इंतजार किया. फिर आई वॉज श्योर दैट नो पासर्स बाय कुड सी मी एंड देन crept under the sidewalk and lay for the night on the ground with my sachet of clothing for a pillow. मैंने कुछ क्षण तक इंतजार किया और जब मुझे लगा मैं पक्का हो गया कि कोई भी यात्री या आने जाने वाला व्यक्ति मुझे नहीं देख सकता, तो मैं उसके नीचे सरक गया और वहीं पर सड़क के किनारे जमीन पर लेट गया और अपने सामान वाले थैले को अपनी तकिया बना लिया. Nearly all night I could hear the tramp of feet over my head. Nearly माने लगभग, ट्रैम्प माने होता है साउंड ऑफ फीट, पैरों की आवाज, पदचाप. लगभग सारी रात मैं अपने सिर के ऊपर पैरों की आवाज सुनता रहा. ओके बच्चों, लेसन का बचा हुआ भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.